On the night of the migration, a tribal chief of the disbelievers, Abu Jahl, in a fit of fury, headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq's radiyallahu ta'ala anhu home. On the night of the migration, Hijrat ki Shab, a tribal chief of the disbelievers, Abu Jahl, काफिरों के एक कबायली सरदार अबू जहल ने, in a fit of fury, शदीद तैश में आकर, headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq's radiyallahu ta'ala anhu home. हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर का रुख किया. हिजरत की शब, काफरों के एक कबायली सरदार अबू जहल ने शदीद तैश में आकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर का रुख किया. He began to knock at the door violently. He began to knock, वो खटखटाने लगा. At the door, दरवाज़ा, violently, ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा. Addressing Hazrat Asma radiyallahu ta'ala anha, he demanded, "Where is your father?" Addressing Hazrat Asma radiyallahu ta'ala anha, Hazrat Asma radiyallahu ta'ala anha से मुखातिब होते हुए, he demanded, उसने मुतालबा किया, "Where is your father?" तुम्हारा बाप कहाँ है? हज़रत अस्मा रदियल्लाहु ताला अन्हा से मुखातिब होते हुए उसने पूछा, तुम्हारा बाप कहाँ है? She politely replied, "How would I know?" She politely replied, उन्होंने शाइस्तगी से जवाब दिया, "How would I know?" मुझे कैसे इल्म हो सकता है? उन्होंने शाइस्तगी से जवाब दिया, मुझे कैसे इल्म हो सकता है? This response shows the wisdom and courage of Hazrat Asma radiyallahu ta'ala anha. This response, ये जवाब, shows, ज़ाहिर करता है, the wisdom and courage, दानाई, हिकमत और जुर्रत को of Hazrat Asma radiyallahu ta'ala anha. हज़रत अस्मा रदियल्लाहु ताला अन्हा की ये जवाब, हज़रत अस्मा रदियल्लाहु ताला अन्हा की हिकमत, दानाई और जुर्रत को ज़ाहिर करता है. She didn't make any statement that would give him even a minor clue. She didn't make any statement, उन्होंने कोई ऐसी बात ना की, that would give him, जो उसे फराहम करती, even a minor clue, ज़रा सा भी इशारा. उन्होंने कोई ऐसी बात ना की जो उसे ज़रा सा भी इशारा फराहम करती. She simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. She simply posed, उन्होंने महज कर दिया, a counter question, उल्टा सवाल, that infuriated Abu Jahl, जिसने अबू जहल को गज़बनाक कर दिया. उन्होंने महज एक उल्टा सवाल कर दिया जिसने अबू जहल को गज़बनाक कर दिया. He slapped Hazrat Asma's radiyallahu ta'ala anha face so hard that her earring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret. He slapped Hazrat Asma's radiyallahu ta'ala anha face. उसने हज़रत अस्मा रदियल्लाहु ताला अन्हा के चेहरे पर थप्पड़ मारा, so hard, इस जोर से, that her earring fell off, कि उनके कान की बाली दूर जा गिरी. But she remained steadfast, मगर वो साबित कदम रही, and did not reveal the secret, और राज ज़ाहिर ना किया. उसने हज़रत अस्मा रदियल्लाहु ताला अन्हा के चेहरे पर इस ज़ोर से थप्पड़ मारा कि उनके कान की बाली दूर जा गिरी, मगर वो साबित कदम रही और राज ज़ाहिर ना किया. Paragraph 5. Her grandfather, Hazrat Abu Quhafa radiyallahu ta'ala anhu, was a disbeliever at that time. Her grandfather, Hazrat Abu Quhafa radiyallahu ta'ala anhu, उनके दादा हज़रत अबू कुहाफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु, was a disbeliever, गैर मुस्लिम थे. At that time, उस वक्त उनके दादा हज़रत अबू कुहाफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त गैर मुस्लिम थे. He was very old and blind. He was very old, वो बहुत बूढ़े, and blind, और नाबीना थे.
वो बहुत बूढ़े और नाबीना थे. He said to her, Asma, I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless. He said to her, उन्होंने हजरत अस्मा रदियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, अस्मा, I think, अस्मा, मेरा ख्याल है, Abu Bakr has taken all the wealth, कि Abu Bakr तमाम मालो दौलत ले गए हैं, leaving you and children, और तुम्हें और बच्चों को छोड़ गए हैं, empty-handed and helpless, खाली हाथ और बेयारो मददगार. उन्होंने हजरत अस्मा रदियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, अस्मा, मेरा ख्याल है कि अबू बकर तमाम मालो दौलत ले गए हैं और तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेयारो मददगार छोड़ गए हैं. At this, she instantly ran to a corner of the home. At this, इस पर, she instantly ran, वो फौरन दौड़ कर गई, to a corner of the home, घर के एक कोने की तरफ. ये सुनकर वो फौरन दौड़कर घर के एक कोने की तरफ गईं. She gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. She gathered some pebbles, उन्होंने कुछ कंकरियां जमा की, and put them, और उन्हें रख दिया, at the place, इस जगह, where her father used to keep, जहां उनके वालिद गिरामी रखा करते थे, his money and jewels, अपनी रकम और जवाहरात. उन्होंने कुछ कंकरियां जमा की और उन्हें इस जगह रख दिया जहां उनके वालिद गिरामी अपनी रकम और जवाहरात रखा करते थे. She covered it with a piece of cloth and said, Come, grandfather, look, he has left all this for us. She covered it, उन्होंने इसे ढांप दिया, with a piece of cloth, एक कपड़े के टुकड़े से, and said, और कहा, Come, grandfather, look, आइए दादा जान देखिए, he has left all this for us. वो ये सब कुछ हमारे लिए छोड़ गए हैं. उन्होंने इसे एक कपड़े से ढांप दिया और कहा, आइए दादा जान देखिए, वो ये सब कुछ हमारे लिए छोड़ गए हैं. He touched the cloth and thought it was full of gold and jewels. He touched the cloth, उन्होंने कपड़े को छुआ, and thought, और समझे, it was full, कि ये भरा हुआ है, of gold and jewels, सोने और जवाहिरात से उन्होंने कपड़े को छुआ और समझे कि ये सोने और जवाहिरात से भरा हुआ है. His concern was alleviated, and he felt relieved to know that Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu had left all his wealth at home. His concern was alleviated, उनकी तशवीश दूर हो गई, and he felt relieved, और वो मुतमईन हो गए, to know that, ये जानकर कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु had left, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु छोड़ गए हैं, all his wealth at home, अपना सारा मालो ज़र घर पर, उनकी तशवीश दूर हो गई, और वो ये जानकर मुतमईन हो गए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु अपना सारा मालो ज़र घर ही छोड़ गए हैं. Paragraph 6. Hazrat Asma was amongst the early few who had accepted Islam. Hazrat Asma was amongst the early few. Hazrat Asma radiyallahu anha उन इब्तिदाई चंद अफराद में से थीं who had accepted Islam, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था. हज़रत अस्मा रदियल्लाहु अन्हा उन इब्तिदाई चंद अफराद में से थीं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था. She was the stepsister of Hazrat Aisha Siddiqa and the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq. She was the stepsister. आप रदियल्लाहु अन्हा सोतेली बहन थीं of हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा की, and the daughter और बेटी थीं of हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु की.
आप रदी अल्लाहु अन्हा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाहु अन्हा की सौतेली बहन और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाहु अन्हु की बेटी थीं। She was the wife of Hazrat Zubair bin al-Awwam and the mother of Hazrat Abdullah bin Zubair. She was the wife, आप रदी अल्लाहु अन्हा ज़ौजा थीं of Hazrat Zubair bin al-Awwam रदी अल्लाहु अन्हु की, and the mother और वालिदा थीं of Hazrat Abdullah bin Zubair, Hazrat Abdullah bin Zubair रदी अल्लाहु अन्हु की। आप रदी अल्लाहु अन्हा हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम रदी अल्लाहु अन्हु की ज़ौजा और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदी अल्लाहु अन्हु की वालिदा थीं। She died at the old age of about 100 years. She died, आप रदी अल्लाहु अन्हा ने वफ़ात पाई at the old age, ज़ईफ़ुल उम्री में, of about 100 years, तकरीबन 100 साल की। आप रदी अल्लाहु अन्हा ने तकरीबन 100 साल की ज़ईफ़ुल उम्री में वफ़ात पाई। Hazrat Abdullah bin Zubair used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt Hazrat Aisha and his mother Hazrat Asma. Hazrat Abdullah bin Zubair used to say, Hazrat Abdullah bin Zubair radiyallahu anhu फरमाया करते थे that he had not seen anybody, कि उन्होंने किसी को नहीं देखा more generous and open-hearted, ज़्यादा फयाज और कुशादा दिल than his aunt Hazrat Aisha, अपनी खाला Hazrat Aisha radiyallahu anha and his mother Hazrat Asma, और अपनी वालिदा हज़रत अज़मा रदी अल्लाहु अन्हा से। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदी अल्लाहु अन्ह फरमाया करते थे कि उन्होंने अपनी खाला हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा और अपनी वालिदा हज़रत अज़मा रदी अल्लाहु अन्हा से ज़्यादा फयाज और कुशादा दिल किसी को नहीं देखा। Hazrat Asma was so generous that she sold her garden inherited after the death of her sister Hazrat Aisha. Hazrat Asma was so generous, Hazrat Asma radiyallahu anha इतनी फयाज थी that she sold her inherited garden, कि आपने अपना विरासत में मिलने वाला बाग बेच दिया। हज़रत अज़मा रदी अल्लाहु अन्हा इतनी फयाज थीं कि आपने विरासत में मिलने वाला अपना बाग बेच दिया, and gave away all the money to the poor and the needy, and gave away all the money और तमाम रकम तकसीम कर दी, to the poor and the needy, गरीबों और ज़रूरतमंदों में, और तमाम रकम गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दी। Nobody ever returned empty-handed from her doorstep. Nobody ever returned. कोई भी कभी वापस नहीं गया। Empty-handed, खाली हाथ, from her doorstep, आपके दरवाजे से। आप रदी अल्लाहु अन्हा के दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं लूटा। Paragraph 7. Hazrat Asma will always be remembered for her courage, generosity and wisdom. Hazrat Asma will always be remembered. Hazrat Asma radiyallahu anha को हमेशा याद रखा जाएगा for her courage, generosity and wisdom. उनकी जुर्रत, सखावत और दानाई की वजह से। हज़रत अज़मा रदियल्लाहु अन्हा को उनकी जुर्रत, सखावत और दानाई की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। She had steadfast faith in Allah Almighty. She had steadfast faith. आप रदियल्लाहु अन्हा का पुख्ता ईमान था in Allah Almighty, अल्लाह ताला पर आप रदियल्लाहु अन्हा का पुख्ता ईमान था। Her life would always be a beacon of light for all of us. Her life would always be, आप रदियल्लाहु अन्हा की जिंदगी हमेशा रहेगी, a beacon of light, मशअले राह, for all of us, हम सब के लिए। आप रदियल्लाहु अन्हा की जिंदगी हम सब के लिए हमेशा एक मशअले राह रहेगी।